سامعین و ناظرین، بھارت میں پرائمری اسکولوں میں جب بچوں کو جانوروں کی شناخت سکھائی جاتی ہے تو جب یہ بتانا مقصود ہو کہ گدھی کا بچہ کیسا ہوتا ہے، بچوں کو جب یہ بتانا مقصود ہو کہ گدھی کا بچہ کس طرح کا ہوتا ہے تو یہ تصویر لگا کے اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے گدھی کا بچہ۔ اور جب گدھے سے متعلق آگاہی دینا مقصود ہو تو یہ والی تصویر لگائی جاتی ہے اور بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے گدھا۔ آپ انصاف پسند پاکستانی ہیں تو آپ دو طرح کے الزام مجھ پہ لگائیں گے۔ ایک تو آپ کہیں گے کہ آپ نے دو اشخاص کو گالی دی ہے، اور پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، بھارت میں اس طرح کی تعلیم کہیں پر بھی نہیں دی جاتی ہے، کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ گدھوں سے متعلق تعلیم کے حوالے سے کہیں پر بھی نہیں بتایا جاتا، تو آپ نے جھوٹ بولا۔ یہ بھی میں ایڈمٹ کر لیتا ہوں، چلیں جی میں نے جھوٹ بولا، لیکن ایسا میں نے کیوں کیا؟ آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ پاکستان کی جو پرائمری اسکول میں جب ایجوکیشن شروع ہوتی ہے تو ان کی جو پاکستان سٹڈیز کی اگر آپ بک اٹھائیں اس میں کیا ہوگا، جیسے آپ اے فار ایپل سکھاتے ہیں، بی فار بال سکھاتے ہیں، وہاں پہ آپ جائیں گے ز سے ظالم، اور وہاں پہ ایک سکھ کی سردار کی فوٹو لگی ہوگی، بنی ہوگی۔ اچھا۔ ڈ سے ڈاکو، ڈاکو کے اوپر ایک ہندو برہمن کی فوٹو ٹیکا لگا کے چوٹی کے ساتھ، مطلب ہندو جو ہے وہ ڈاکو ہوتا ہے، سکھ جو ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ تو یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح سے ایک آدمی ٹی وی پر بیٹھ کر، یہ بھارت کا بہت بڑا چینل بادام خیش اپنے آپ کو بہت بڑا چینل سمجھتا ہے، اور اس بڑے چینل پر بیٹھ کر کتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ پاکستان کے نصاب میں جب بچوں کو ڈاکو سے متعلق بتایا جاتا ہے تو ہندو کی تصویر لگائی جاتی ہے، اور جب ظالم سے متعلق آگاہی دینا مقصود ہو تو سکھ کی تصویر لگائی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ پرائمری اسکول کی کسی بھی طرح، پاکستان کے کسی بھی اسکول میں، پرائمری تعلیم میں یا اس سے بڑی کلاس میں، کہیں پر بھی اس طرح سے نہیں کیا جاتا کہ ہندو کی تصویر لگا کے اس کے سامنے ڈاکو لکھا جائے اور ظالم کی تحریر لگا کے اس کے سامنے سکھ کی تصویر لگائی جائے۔ کتنا بڑا جھوٹ یہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بول رہے ہیں۔ اور گزشتہ دنوں میں نے ان کو کہا بھی تھا، ایک صاحب جو ہیں ان میں لنگور صاحب، جن کا میں نے نام رکھا تھا لنگور صاحب، وہ لنگور صاحب، ان کو میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا کہ بھائی ڈی این اے پر زیادہ بولو نہیں، کیونکہ ڈی این اے میں تمہارا کام خراب ہو جانا ہے۔ پورے بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، تم نے پھر کہانی غلط ہو جانی ہے ساری، تمہارا ڈی این اے میچ ہو جانا مسلمانوں کے ساتھ۔ نہیں کرو ایسا۔ یہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر اس طرح اتنی بڑی بڑی بکواسات کرتے ہیں، ان کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے۔ جتنا بڑا جھوٹا ہوگا اتنا بڑا ٹی وی اینکر سمجھا جائے بھارت کے اندر۔ یہ افسوسناک بات ہے، ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی سوچتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کی نیشنل سائیکی کیا ہے سر؟ کیا سوچتا کیا ہے؟ کیا ہے پاکستانی؟ سوچتے ہی تو نہیں ہے سب۔ ان کا بیسکلی کیا ہے پاکستانیوں کا کہ دے آر ایسینشلی، اگر میں بولوں کہ ایک بہت شدید قسم کا ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے اپنی شناخت کو لے کے، اپنی آئیڈینٹی کو لے کے، اور یہ پاکستانیوں کا یہ جو مول منتر ان کا یہی ہے۔ یعنی وہ اینکر نے سوال کیا کہ پاکستانی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، تو وہ کہتا پاکستانی سوچتا ہی تو نہیں ہے۔ یہ دماغ کا کیڑا ہے، اسے پتہ ہے کہ پاکستانی نہیں سوچتا، یہ دماغ میں ہوتا ہے۔ سوچ تو دماغ میں ہوگی نا، اس کو کس طرح پتہ ہے پاکستانی سوچتا ہی نہیں ہے؟ کس نے آ کر اس کو بتا دیا کہ جناب والا پاکستانی دماغ بڑے فریش دماغ ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں؟ آپ اندازہ کریں اس آدمی کے عقل کا کہ یہ جو اینکر پرسن ہو یا جو بھی اس کا جو ذمہ داری ہے، اس کا ایک اپنی حدود ہوتی ہیں۔ یہ لوگوں کے دماغوں پر حملے کر رہا ہے کہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل نہیں سوچتے ہیں پاکستانی، اور پاکستانی کسی کو لڑانے کا کبھی نہیں سوچتے۔ نہیں سوچتے ہیں پاکستانی تو کسی ملک کے خلاف سازش کرنے کا نہیں سوچتے۔ نہیں سوچتے ہیں پاکستانی تو اس طرح خلیج پیدا کرنے کے جو طریقے ہیں وہ نہیں سوچتے کہ کس طرح سے کس کو دور کیا جائے کسی سے۔ جس طرح آپ نے بلوچستان میں
अपनी जो हरकतें हैं आपकी वो सारी सामने आ गई। होता है ना कि अभी इंडिया बलूचिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है, हमारी रॉ जो है वहाँ पर ये काम करती है। मोदी जी ने, जब मुझे याद आ रहा है, एक बार लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लिया था 2014 में। इससे पहले तक हमने कभी नहीं सुना था इंडिया में बलूचिस्तान या भारत सरकार की तरफ से कभी किसी ने बलूचों की बात की हो। नहीं, मनमोहन सिंह ने शर्म एल शेख में जो बयान दिया, समस्या तो वहाँ से शुरू हुई। उन्होंने कहा हमारे भी लोग जो है बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, मनमोहन सिंह मान आए थे ना। हाँ, तो वहां से पाकिस्तान को एक हैंडल मिल गया कि देखिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम कश्मीर में करा रहे हैं, ये बलूचिस्तान में करा रहे हैं। गजब। तो उससे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का गुफअप मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद से कोई दूसरा हुआ। ब्लंडर सर, ब्लंडर। हाँ, ठीक से शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो उसके बाद आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। वो तुम्हारी सोच थी बिला शुबा, जो तुमने सोचा किसी के खिलाफ, तो इस तरह वाकई पाकिस्तानी नहीं सोचता। फिर वो एक असल में तो ये प्लांट इंटरव्यू था। मैं ये सवाल करूंगा, आपने ये जवाब देना है, मैं ये सवाल करूंगा, आपने ये जवाब देना है। मतलब के सवालात, मतलब के जवाबात लेने हैं। आप बिठाएं किसी को, किसी पाकिस्तानी को, तो आपका वो मुंह तोड़े, आपको बताए कि क्या आप झूठ, कहाँ आप झूठ बोल रहे हैं। कह रहा है कि पाकिस्तानी तो हैं भीख मांगने वाले। खबर आई थी कि 90% ऑफ ऑल द बेगर्स इंटरनेशनली हु आर इन जेल, जो जेल में है 90% बेगर्स, वो पाकिस्तानी है। $42 बिलियन की इकोनॉमी है बेगिंग की पाकिस्तान के अंदर साहब। ओह गॉड। आईटी की 3 बिलियन की है, बेगिंग की 190 बिलियन नहीं 42 बिलियन। 42 अरब डॉलर की सिर्फ भीख की इकोनॉमी है। तब आप समझ सकते हैं वो देश, देखिए वो बड़े क्लियर हैं, दे आर वेरी क्लियर। जब मांग के आप खा सकते हैं तो मेहनत करना तो बेवकूफी है ना। फिर एक भीख की बात पे याद आई, सऊदी अरब ने अभी उनका जो है कोटा घटा दिया है जो हज का है। जी कहा आप भीख मंगे भेजते हैं। Yes. हमारे देश की जेलों में जगह नहीं बची है उनको रखने के लिए। वो आते हैं यहाँ भीख मांगते हैं, पिक पॉकेट करते हैं और हर तरह का अपराध करते हैं। एक वीडियो भी आया था ना इसमें, वो मतलब जहाज के अंदर, हवाई जहाज एयर में है, उसके अंदर एक आदमी भीख मांगने लग गया था। वो सेलिब्रिटी है बाय द वे। अच्छा। पंजाब का बहुत बड़ा टिकटॉकर है वो, जो भीख मांग रहा था। वो आप ये समझ लीजिए कि लाहौर में आप किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए, हर कोई उसको जानता है। वो पाकिस्तान का बहुत फेमस बंदा है, उसके पास पैसा, उसने शेर पाल रखा है अपने घर में, वो भीख मांग रहा है फ्लाइट में। गजब। तो वहां पे अगर आप भीख मांगने की बात करेंगे, भीख मांगने पर ही आप जिद करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ भीख मांगने वाला कौन है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक मंदिर के सामने, भारत के अंदर एक मंदिर के सामने 10 लोग भीख मांगते हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 लोग भीख मांगते हैं, 30 लोग भीख मांगते हैं। हमारी मसाजिद के सामने कराची में, पाकिस्तान में, मुकम्मल पूरे पाकिस्तान में 2 से 3 से 4 लोग मस्जिद के सामने बैठ के भीख मांगते हैं। अब यहाँ पता चल जाएगा कि कौन भीख मांगता है, किसको भीख मांगने का शौक है। मजहब पर हमले ना करें, जवाब में इसी तरह का रद्द अमल आएगा। आपके मंदिरों के सामने 30-30, 40-40 लोग, ऐसे मंदिर भी मौजूद है। मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आप लोगों को। ऐसे मंदिर भी मौजूद है जहाँ 100 से ज्यादा भिखारी बाहर मौजूद है। तो भीख मांगने वाला कौन है? वो एक टिकटॉकर जिसने अपनी फेम के लिए पता नहीं किस सिलसिले में उसने इस तरह की हरकत की। आप उनका नाम ले रहे हैं, जिसका आपको खुद पता है कि उसने अपने किसी फेम के चक्कर में, किसी शोहरत के चक्कर में उसने ऐसा किया। फिर डीएनए पे बात करते हैं ये। वो दूसरे साहब इंतहाई गलीज बात करते हैं, कहते सादात का डीएनए सखर और लाड़काने के नाम नहीं लिया उसने, उनसे मिल रहा है। ओ भाई, उनसे कैसे मिल रहा है? कहाँ तुमने ये लेबोरेटरी लगाई हुई जिसमें तुम टेस्ट कर रहे हो बैठ के, और सिर्फ तुम्हें ही पता चल रहा है उसका? किसी को, दुनिया में किसी को पता नहीं चल रहा कि किसका डीएनए किससे मिल रहा है। अपना भी डीएनए करा लो लगे आज, पता तो चल जाए किस मुसलमान की औलाद हो तुम, किस मुसलमान की नाजायज औलाद हो। इनका मैंने पहले भी अर्ज किया था जब पहली वीडियो मैंने बनाई थी, इनकी जो शुरू का हिस्सा होता है वो इंतहाई जारहाना होता है, आखिर में फिर ये बातें तस्लीम करना शुरू कर देते हैं। मैं वो नमूना आपको दिखा देता हूँ। पहले बांग्लादेश के हवाले से क्या कह रहा है ये शख्स, और यही शख्स आखिर में बांग्लादेश के हवाले से क्या कह रहा है। तो ये जो पाकिस्तानी बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं कि जिस बंदे ने
पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, उसका स्टैचू तोड़ दिया, उसका बुत तोड़ दिया, उसकी बेटी को भगा दिया, जो ये खुशी मना रहे हैं विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की, मतलब 1971 में ये हुआ था, वो दे आर सिंपली रिपीटिंग हिस्ट्री. इनको आप जानते हैं, ये जो आप बात कह रहे हैं 130 लोग मार दिए, राइट, ये चाहे बलोच हों, चाहे ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हों, ये तो मजीद ब्रिगेड का एक एक्शन हो गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इनको अभी तक यही पता नहीं लगा कि प्री मैच्योर सेलिब्रेशन कभी नहीं करना चाहिए. इनकी बड़ी आदत, ये कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, ये पहले खुश हो जाते हैं, अब तो जीत गए, अब तो पार्टी हो गई, जीत गए, फिर मायूस से हो जाते हैं. तो यही काम इन्होंने अफगानिस्तान में करा. अब देखिएगा इनके साथ, देखिए बांग्लादेश में ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको यह बताऊंगा कि भारत और बांग्लादेश का 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है, और बांग्लादेश के 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक म्यांमार, एक भारत. पाकिस्तान कह रहा है हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, जो खुद पैसा मांग के शाम का खाना खाता है वो कह रहा है कि बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे. अब ये कितना बड़ा जोक है, या आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है. ये हर समय कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है, और आर्मी का काम यह है कि युद्ध के लिए तैयार होना. तो फिर से एक बार उनको आह्वान दिया है, उनको एक कॉल दिया है कि बी रेडी फॉर वॉर. इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध होने वाला है, इसका मतलब ये है कि फौज को तैयार रहना है. फौज एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, देश की इंश्योरेंस पॉलिसी. अच्छा समझा है आपने जी. आर्मी इज जब लोग कहते हैं ना फौज में खर्चा बहुत हो गया, तो मैं कहता हूं खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी है. जिस दिन गड़बड़ होगी इंश्योरेंस पॉलिसी काम आएगी. द इंडियन आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्स आर द इंश्योरेंस पॉलिसी. ये याद रखिए साहब, ये मेरे ख्याल से आपने एक चीज और युद्ध भी है, हो ना हो, दिया सेना हमेशा तैयार है. इसमें एक चीज और भी है, जो बांग्लादेश में जो भी रिसेंटली हुआ है, जी. तो इस बात का बहुत सारा चांसेस हैं कि अगर आपको याद हो, जब तक बांग्लादेश नहीं बना था, बांग्लादेश बनाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान को यूज किया जाता था आपके नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए. ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट थी बांग्लादेश बनाने की. अब जो बांग्लादेश में जो रिजीम आई है, जो जमात इस्लामी जो स्ट्रांग हुई, और जमात इस्लामी पाकिस्तानी ISI की इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वो उसको यूज करेंगे इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट में दोबारा इंसर्जेंसीज को खड़ा करने के लिए, जिन इंसर्जेंसीज को फौज ने खत्म किया है. इन्वेस्टमेंट है भाई, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है ISI की. अपने लोगों में भी जोश और जज्बा उभार रहा है कि आप लोग भी जो है बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करें आर्मी के अंदर. उनको करने दें, उनको तोप गोले इस तरह की चीज़ें बनाने दें. हम कहते हैं बनाए, 1000 बार बनाए. पाकिस्तान के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है. ये असल में खुद मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, आज फिर ये बात कहता हूँ, ये खुद डरा हुआ है मुसलमानों से और अपने लोगों को डरा रहा है. हिंदू बनिया खुद डरा हुआ है और लोगों को डरा रहा है. और इसके कहने से मेरा ख्याल है लोग डरेंगे नहीं. इस तरह से कौन डरता है? आप बातें करते रहो, मुसलमान इतना खतरनाक है, मुसलमान इतना खतरनाक है, मुसलमान यूं खतरनाक है, पाकिस्तान यूं खतरनाक है. खतरनाक आप हो. आप मणिपुर में देखें क्या हो रहा है, आप पंजाब मशरकी में देखें सिखों के साथ कितने जुल्म हो रहे हैं, कितने जुल्म ये कर रहे हैं. आप कश्मीर में देखें मकबूजा वादी में कितने मजालिम ये ढा रहे हैं. तो कौन खतरनाक है? खित्ते के अंदर सिक्योरिटी रिस्क अगर कोई है तो वो भारत है. हमारे पास, हम सबूतों के साथ बात करते हैं, बगैर सबूत इधर की नहीं हाँकते, उधर नहीं जाकर इधर की उधर लगा दे, उधर की इधर लगा दे, जोड़ दे, ये नहीं, सीधी सीधी बात करते हैं हम. सीधी सीधी बात है, हमारे पास हर चीज का इस तरह का सबूत मौजूद है. आपने नई सरहदें खोल ली है. यूट्यूबर जितने भी हैं इस तरह के छुटपैये, आप देख लें, इनका रोजगार ही इसी पे है. हो पाकिस्तानी आ गया, हो मुसलमान आ गया, हो डर जाओ. क्यों डरा रहे हो भैया? जो दुनिया भर में आप देख लें, जहां जहां 2 ममालिक की सरहदें मिलती हैं, कोई भी ऐसी LOC नहीं है जो रोजाना इंतशार की जद में हो. कभी उधर से फायरिंग हो रही है, कभी वहां से शरारत हो रही है. तो क्यों भाई, क्यों शरारतें कर रहे हो? हमने तुम्हें ये जंग हरवाई है, हमने तुम्हें वो जंग हरवाई है, हमने तुम्हें ये जंग हरवाई है. और मैदान लगा कब है तुम्हारे साथ? 65 के बाद तो मैदान लगा ही नहीं. साजिश को जंग कहते हो? जंग तो वो होती जो सीना बसीना हो, सीना बसीना लड़ो. हमें डरा रहे हो? मुसलमान पैदाइशी मुजाहिद होता है, फिर खुद भी कह रहा है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह, और मानी नहीं समझ आ रहे उसको. जिहाद फी सबीलिल्लाह की, अल्लाह की राह में जिहाद करना, तो उससे क्या खतरा है तुमको? उससे तो किसी को भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए. हाँ, अगर तुम्हारी डेफिनेशन है कोई जो तुमने खुद साख्ता बनाई हुई है, तो तुम लोगों को डराते रहो, सारी जिंदगी डराते रहो.
सामीन और नाज़रीन, इस तरह के लोगों की बातें सुनने वाले हजारों नहीं करोड़ों लोग होते हैं, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। अभी आपने देखा तश्तबाम हो गया इनका झूठ। किसी किताब में अगर है तो लाके दिखाएं कि हमने जालिम लिखा हो उसके साथ सिख की तस्वीर हो, डाकू लिखा हो उसके साथ हिंदू की तस्वीर हो, लाके दिखा दे, हम मान लेंगे जी हमारी तहकीक गलत थी। पाकिस्तान के किसी प्राइमरी स्कूल में ऐसा नहीं। हाँ, अगर कोई प्राइवेट स्कूल ऐसा कर रहा है हम मजम्मत करते हैं। इस तरह मज़हब को, किसी भी मज़हब को निशाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोगों की बातें ज़रूर सुने, लेकिन हक़ाइक़ जो मस्ख़ करते हैं लोग, उनकी बात सुनकर उन पर ज़्यादा तवज्जो ना दिया करें। इसके अलावा इन की बातों में से कुछ निकलता तो है नहीं। या तो किसी मुसलमान को या तो किसी पाकिस्तानी को बिठाते साथ, हम भी मान लेते कि यार पाकिस्तानी को जो है इन्होंने बिठाया है और इस तरह की बातें कही हैं। खुद ही बैठ गए 2-4 लोग और वो बैठ के जो है पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। ना उनको पाकिस्तान का कुछ पता है पाकिस्तान क्या है, ना उनको इस्लाम का कुछ पता है इस्लाम क्या है। तो ज़रूर सुने ऐसे लोगों को भी, लेकिन हक़ाइक़ को भी ज़रूर जानते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो बर वक्त मिले। और हमारी वीडियोस को जो है शेयर भी किया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।